Can you see the slide? The green and the red Yes. on the, okay, fine. So we'll be starting with level 2 subjective of, sorry, level 1 subjective of your circular motion, and we'll try to complete it today only. If something is there, we can do it on Friday, but generally we'll try to complete it today. Sure. Question number 1. A particle is projected with speed u at an angle theta with respect to horizontal. Can anyone tell me which type of motion is this speaking about? Hello? Projectile. Projectile motion. Consider a small part of a path near the highest point. तो highest point हमको पता है कि highest point ये होगा and इसका speed होगा u cos theta. Small part of the path near the highest point. Suppose if I consider a small path and take it approximately to be a circular arc. So I've taken it as a circular arc. What is the radius of the circle? This radius is called as radius of curvature. तो हमको समझ जाना है कि ये जो पार्ट कंसिडर किया इसका अगर मैं सर्कल एक कंप्लीट करूं तो ऐसा बनेगा. हेलो, डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? ये जो स्मॉल छोटा आर्क है ना, ये जो सर्कुलर आर्क है, इसका अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं तो ऐसे बनेगा. एंड दिस रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो if I represent this here, if I represent the circle here, look carefully here. You know, speed at this instant is u cos theta. Can anyone tell me where is the acceleration acting? At this point, where is the acceleration acting? Downward. What is that value? G. G. And can I say this radius is also called as radius of curvature? ये हमको मालूम है. Can I say this will act as your centripetal acceleration at this instant of time? And we know the formula for centripetal acceleration is v square by r. Can I write this as ACP is g, v square is u square cos square theta by r is rc. So radius of curvature is going to become u square cos square theta by g. Hello, yes or no? Clear? Yes, sir. So this is how we solve the formula for radius of curvature. This is the question. If they ask you radius of curvature, this will be the concept. ध्यान रखना, अच्छा वाला concept है क्या? Question number 2 पर आता है. I'll just give you the basic formula and go ahead. Does anyone know the formula for maximum speed beyond which toppling will take place? मैंने प्रूफ किया था ये पूरा फॉर्मूला. एक था वेलोसिटी मैक्सिमम बियॉन्ड टॉपलिंग विल टेक प्लेस, याद है? अंडर रूट क्या था? ARG by H. RG A by H. What does A stand for? AA. Half the length of the base. Yeah, half the distance between the two tires. Yes, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और ये A हो, और RG तो रेडियस ऑफ द रोड एंड G इज ग्रेविटी. तो हमको सब मालूम है. आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग एनीथिंग. देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रेडियस दिया है,
height of center of gravity दिया है, and distance between the wheels is given as this. So this is what 2a ना, a रहेगा 0.7, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, you will get the resultant answer. ठीक है, this is for without toppling. This was proved only. No need for taking any tension over here. Question number 4 पर आता है. Question number 4. Now we know the whole concept, कोई इसमें वो नहीं है. We know the whole thing. We just need to apply a little and we'll get the resultant answer. Okay. Show that the angle made by the string with the vertical in a conical pendulum cos theta is g by L omega square, where L is the length and ये prove करना है मुझे. तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो हमको मालूम है this will be the height, this is the length, this is the bob, this is the r, ये theta, ये t cos theta balances mg, and we also know that t sin theta provides centripetal force. So t cos theta balances mg, and t sin theta, देखो मेरी बात सुनो, t sin theta provides centripetal forces m omega square r. Hello, do you agree with me? Baba, Hana, bolo jaldi. Fast, come on, man. This is very easy, huh? Can anyone tell me what is r in terms of triangle? R को लिख सकता हूँ L sin theta. So T sin theta is m omega square r. R is L sin theta. Sin theta, ये sin theta cancel हो गया. So T will become m omega square L. अरे भाई ठीक है. हेलो Yes, हेलो. sir. अच्छा, यहाँ से मुझे देखो क्वेश्चन में cos थीटा मांगता है. सो t की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ mg by cos थीटा. देखो इधर से, देखो ना इधर से, t की जगह लिख सकता हूँ mg by cos थीटा m ओमेगा स्क्वायर l. cos थीटा क्या हो गया भाई? g by omega square l. Do you understand? Hello. Yes, sir. We are just manipulating this and this. और r को l sin थीटा लिखा. इन दोनों को मैनिपुलेट करो, अपने आंसर आपको दिखाई देगा. नॉट अ बिग डील. एंड सिंस आंसर में cos थीटा चाहिए, हमको cos थीटा को सामने रखना. ओके. Okay. Question number 6 is very important. A block of mass m is kept on a horizontal. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग इधर ध्यान देना बेटा. A block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance of L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. Okay. What can be the maximum constant angular speed B for which blocks does not slip? थोड़ा ध्यान से.
देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक रूलर है, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है. ओके, the ruler is fixed at one end and the block is at a distance of L. So the block is there over here. And can I say it is distance of L? यहाँ से हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, बराबर है. हेलो, आर यू गेटिंग इट? हाँ भाई, Yes, sir. तो ये भी ऐसे सर्कल में जाएगा ना बेटा, ये भी ऐसे सर्कल में जाएगा. अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक है ये कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द ब्लॉक इन? सेंट्री नॉन इनर्शियल फ्रेम ना, इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? कैन आई से इट इज M? कौन फास्ट बेटा, टेल मी. M M omega square R. L हो जाएगा ना, इसका रेडियस R है ना, L है ना. एंड कैन आई से इंटेंशन ऑफ मोशन अगर बाहर है, सिंस इट इज गोइंग टू स्लिप आउटवर्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन अंदर की तरफ आएगा. हेलो, आएगा नहीं आएगा? फ्रिक्शन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन? म्यू n. बट कैन आई से n इज mg? कैन आई से म्यू n is m omega square L? So mu s mg is m omega square L. m और m तो कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आएगा? mu s g by L. Root of that, you understood, this is the maximum omega, जिसके beyond अगर हम घुमाते हैं, so centrifugal force will dominate and the body will be slipping outward. Do you agree with me? हेलो, Yes, sir. ये सब आता ही है, I need not explain more, you know the stuff. Okay, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज डन, ए पार्ट डन. इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड, इसका क्या मतलब है? यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? Non-UCM. ये नॉन यूसीएम में चला गया, अभी फिलहाल तो यूसीएम था. इन केस 1 इट वाज यूसीएम, इन केस 2 इट इज नॉन यूसीएम. एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप? तो अभी का ओमेगा मांग रहा है इन नॉन यूसीएम, दिस वाज ओमेगा इन यूसीएम, ही इज आस्किंग यू इन यूसीएम फर्स्ट स्पीड. ओके, फर्स्ट केस में ही इज आस्किंग यू अबाउट यूसीएम. सेकंड केस में ही सेज इट इज नॉन यूसीएम. अभी थोड़ा सिनेरियो हमको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. दिस इज द सेकंड पार्ट. इफ आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन, वी नीड टू एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग. तो यहाँ पर ओमेगा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया ना इसके पास. हेलो, बिकॉज Yes. ओमेगा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पर ये ब्लॉक है. ओके, नाउ पे अटेंशन टू मी. कैन एनीवन टेल मी, ये तो ये सर्कल में जा रहा है, बट दिस सर्कल इज अ नॉन यूसीएम सर्कल. कैन आई से यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और यहाँ पर tangentially there will be a tangential force also. Do you agree with me? Hello, 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 yes or no? Sir. So can I say जो नेट फोर्स आएगा वो इधर आएगा? That means the intention of motion of the block is here. Can I say friction will be equal and opposite direction, because intention of motion के opposite होता है friction? Hello, do you understand what's happening? Yes or no? Yes, sir. भाई ये दोनों प्लेन के अंदर है, रूलर के प्लेन के अंदर है. Tangential force along the tangent of the circle, centrifugal force radially outward, तो net force इस तरफ आएगा, so friction अंदर की तरफ आएगा. Okay, can I say this friction is balancing net force? Can anyone tell me the formula for net force? बोलो भाई, जल्दी जल्दी. net force, Under root FT square. ft square plus cff square. चलो यार इधर, what is ft?
m into 80, ये ft is ma ना, 80 आएगा ना यहाँ पर, ft will become m r alpha. हेलो बोलो, Yes, sir. यस और नो. अच्छा fcp cff क्या हो जाएगा, वही जो पढ़ा था हमने, m ओमेगा स्क्वायर r. दोनों फॉर्मूलाज हमको आना चाहिए, दिस वन दिस. तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, दिस विल बी m स्क्वायर r, r की जगह l है ना, ये l ही है, दिस इज l ना एक्चुअली. डिड यू अंडरस्टैंड. m बाहर निकाल के काट दो, ये हो जाएगा म्यू एस जी. यू अंडरस्टैंड. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. अच्छा ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा एट द इंस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है ना, ओमेगा तो बढ़ रहा है ना. कहना इसे ओमेगा को लिख सकता हूँ अल्फा टी. भाई ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी ना, मालूम है ना सबको तो. पर ओमेगा इनिशियल अगर आपने जीरो पकड़ा तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा अल्फा टी. तो ये ओमेगा फाइनल है जो अल्फा टी है एट दिस इंस्टेंट. तो कहना इसे म्यू एस जी, म्यू एस जी इज, इसको स्क्वायर कर दूं मैं, इज एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं अल्फा टी रेज टू 4 एल स्क्वायर. भाई बोलो, हेलो, करेक्ट है ना. Yes, sir. यहां से हमको टी निकालना है, देखो ना, एट व्हाट, नहीं एट व्हाट एंगुलर स्पीड, एट व्हाट एंगुलर स्पीड पूछा है क्या. ओके एट व्हाट एंगुलर स्पीड, तो ओके ठीक है. तो सबसे पहले टी निकालना पड़ेगा बिकॉज ओमेगा इज अल्फा टी ना. हेलो, ओमेगा इज अल्फा टी ना, एट व्हाट एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा चाहिए ना, बट ओमेगा ओवर हियर इज अल्फा इंटू टी. तो यहाँ से कैन आई से इट विल बी म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 4 टी 4 एल स्क्वायर. हेलो हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या. Yes, हेलो, sir. तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा भाई, म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या है, अल्फा 4 एल स्क्वायर रेज टू 1/4. डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट. हेलो 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 हेलो, यस और नो. Yes, sir. अच्छा व्हाट विल बी ओमेगा फाइनल नाउ, एक ओमेगा पे उड़ जाएगा ना, बाहर उड़ जाएगा, तो व्हाट विल बी दैट ओमेगा फाइनल. ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, कम ऑन. कैन आई से ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. ओमेगा फाइनल, we are taking omega initial is 0 plus alpha into t. ओमेगा फाइनल इज अल्फा इंटू टी, यहाँ से लेना है जो हमने फाइंड किया था. हेलो, फाइंड किया था ना आपने, क्या फाइंड किया था, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस क्या था, एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अल्फा 4 रेज टू 1/4. डिड यू गेट इट. हेलो, Yes, sir. एट दिस ओमेगा मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड अगर इससे घुमाएंगे तो इट विल, ही विल टेंड टू स्लिप. यस और नो. बेटा ठीक है ना. हेलो हेलो हेलो. क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है, क्वेश्चन नंबर 8. Two blocks is tied with a massless string of length 3 meter is placed on a rotating table. The axis of rotation is 1 meter from 1 kg mass and 2 meter from 2 kg mass. The
Two blocks tied up with massless string of length. 1 second, just wait, please. One second, just wait, please. Hello. Are you all there, right? Two blocks tied with a massless string of length 3 meter is placed on a rotating table as shown in the figure. The axis of rotation is 1 meter from 1 kg mass and 2 meter from 2 kg mass. The angular speed omega is 4 radian per second. तो omega दिया हुआ है आपको 4 radian per second. Ground below 2 kg is smooth. 2 kg is smooth and below 1 kg is rough. Below 1 kg is rough. सब लोग इधर बात सुनेंगे. Find the tension in the string. Tension in the string is the force of friction of 1 kg block and its direction. अब मजा आएगा, इधर ध्यान देना. A point के बारे में बात करते हैं. Okay. ठीक है. 2 kg block की तरफ देखो बेटा. 2 kg block. If I look at 2 kg block, can I say this will be the string? Will be the tension, na? How much is the radius of 2 kg block? Papa bolo. 2 kg block meter. radius 2 meter है ना? So if he is going in a circle ऐसे, this is 2 meters. Can I say इसके ऊपर एक centrifugal force आएगा? कितना आएगा? What is the formula for centrifugal force? जल्दी. M omega square R. M is 2. ओमेगा कितना है? 4 है. 4 का स्क्वायर 16. रेडियस इज 2. हेलो, कितना होगा? 64 न्यूटन. कैन आई से टेंशन विल आल्सो बी 64? बेटा हाँ ना बोलो. यस और नो? बिकॉज इसके पास फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, स्मूथ है ना. 2 kg का तो स्मूथ है ग्राउंड. उसी के सामने अगर हम 1 kg लेते हैं तो ये टेंशन वही रिफ्लेक्ट होगा इधर. 64 आ गया है. इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और फ्रिक्शन भी आएगा. फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r ओवर हियर? भाई इसका m ओमेगा स्क्वायर r कितना रहेगा? 16. 16 into r इसका 1 है ना. 1 है ना r इसका. ये 16 न्यूटन हो गया. तो कोई बता सकता है फ्रिक्शन कहां पर आएगा? इनवर्ड के आउटवर्ड? रेडियली इनवर्ड के रेडियली आउटवर्ड? जल्दी जल्दी बोलो यार. हेलो. Outward. आउटवर्ड आएगा ना. ये 64 अंदर है ना, 16 है, तो ये फ्रिक्शन आ गया. फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहेगा इधर? भाई अंदर 64 है, बाहर 16 है, तो और कितना बचा? 48. 48 बच गया ना. तो बैलेंस करने के लिए 48 मांगता है, राइट? 48 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच इज रेडियली आउटवर्ड. तो पहला टेंशन का वैल्यू हमको मिल गया 64 न्यूटन.
एंड फ्रिक्शन का वैल्यू मिल गया 48 न्यूटन विच इज रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है ना, ये फर्स्ट So पॉइंट, ये I पॉइंट मिल गया. यस सर. so I do not understand how T is equal to 64. T is equal to 64. You didn't understand this. Yeah, of the second block. It is the same string ना भाई. इधर Okay, जितना yeah, टेंशन आएगा, इधर जितना टेंशन आएगा उसमें भी उतना ही टेंशन आएगा ना. yeah, correct. मासलेस स्ट्रिंग है ना. Yeah. ठीक है ना. ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. बी पॉइंट. If the coefficient of friction between 1 kg and ground is 0.8, म्यू दिया है. म्यू कितना दिया है भाई? 0.8. Find the maximum angular speed so that neither of the block slips. अभी म्यू का वैल्यू दिया है तो हमको फ्रिक्शन दिया है इनडायरेक्टली. दिया है कि नहीं? हेलो बाबा, हेलो, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, कोई बता सकता है फ्रिक्शन किसके पास है? 1 kg के पास है ना. ये 1 kg है, ये स्ट्रिंग है, ये 2 kg है, ये सेम स्ट्रिंग है, ये भी टी है. अच्छा, फ्रिक्शन इधर आएगा. तो हमको तो मालूम है कि टेंशन का वैल्यू कितना है. हेलो, टेंशन का वैल्यू कितना रहेगा? 64 ही रहेगा ना. हेलो 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 बाबा, हाँ ना बोलो. करेक्ट है क्या? नहीं, टेंशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा यहाँ पर. क्या पूछा है आपको? फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड. सॉरी, यस. सो ओमेगा चाहिए मुझे, घुमाने वाला ओमेगा चाहिए. Can anyone tell me either? It will be m omega square r. m कितना है? सो t over here from this case will become m कितना है? 2. ओमेगा का वैल्यू मालूम नहीं है. r का वैल्यू for 2 kg is 2 meter. So tension is 4 omega square. Do you agree with me? हेलो Yes, हेलो. sir. उनको ओमेगा का वैल्यू मालूम नहीं है ना. I'll keep the formula in terms of omega. Can I say वही टेंशन इधर भी ट्रांसफर होगा? वही टेंशन इधर भी ट्रांसफर होगा. कितना हो जाएगा टेंशन? 4 ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, कोई बता सकता है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना रहेगा? यस सर. Omega square. m ओमेगा स्क्वायर. m is 1, ओमेगा स्क्वायर r is 1. सो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ओमेगा स्क्वायर. यस और नो? हेलो, Yes, sir. ये भी ठीक है. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? यहां पर देखो म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है आपको. म्यूएस का वैल्यू आपको दिया हुआ है. कितना रहेगा म्यूएस का वैल्यू? हेलो भाई, म्यूएस का वैल्यू 0.8 है तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहेगा? जल्दी बोलो यार. 8. तो ये हो जाएगा 8 ना. म्यूएस इज 0.8, m इज 1 into g is 10, तो ये 8 हो गया. अच्छा, हमको मालूम है, देखो वहां सब लोग इधर ध्यान दो. टेंशन का वैल्यू आ गया मुझे, कितना आ गया? 4 ओमेगा स्क्वायर. ये ओमेगा स्क्वायर जैसे आपने बताया. तो नेट कितना बचा? 3 omega square. 3 ओमेगा स्क्वायर. रेडियल इनवर्ड क्या आउटवर्ड? भाई 4 Inward. अंदर है, ओमेगा स्क्वायर बाहर है, तो इसके ऊपर अगर नेट फोर्स निकालने जाऊं मैं, ये 4 ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है. तो फ्रिक्शन किधर आएगा? कोई बता सकता है फ्रिक्शन कहां पर आएगा? अंदर के बाहर? Outward. आउटवर्ड ही आएगा. दैट इज 8 न्यूटन यू हैव टोल्ड मी. तो कैन आई से 4 ओमेगा स्क्वायर अंदर इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 8. तो 3 omega square is equal to 8. So omega is going to become root of 8 by 3. This is the maximum omega. बोलो, in this Yes. condition, radian per second. इसके beyond अगर आप spin करेंगे तो slip हो जाएगा. Because at that moment friction will not be able to provide the necessary centripetal force. Or friction will not be able to provide centripetal force minus the tension which is there. ठीक है ना? Because दो चीज है ना यहाँ पर. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज ये दोनों मिलाकर
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। हम लोग क्या बोलते थे कि अगर ब्लॉक रखा है तो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड, बट यहाँ पर रस्सी भी है, द स्ट्रिंग इज ऑल्सो देयर, तो बोथ ऑफ देम का नेट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आर यू गेटिंग इट? हेलो, तो समझ आ रहा है क्या? ये पॉइंट है। Anyone didn't understand, please ask me. Yes, sir. If the maximum tension is 100, then find the maximum angular speed, then neither of the block slips. ये तो easy है. C point. Maximum tension is 100. Can I say 2 kg का block पकड़ता है? यहाँ पे tension ले लिया उसने 100. तो मालूम है कि ये m omega square r होने वाला है. Can I say दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, so tension is 100 is equal to m कितना है 2 omega square मालूम नहीं है, r is 2, ये 4 25 25 5. Yes or no sir? हेलो हेलो, हाँ ना Yes. बोलो इसका. ये तो ठीक है ना, ये तो एकदम सिंपल बात है सी पॉइंट की. हेलो, कुछ समझ में नहीं आया आप लोग को? यस और नो, प्लीज टेल मी. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जेई मेन में it will cut it, they will cut it down and give it to you rather than giving you such a big question. हेलो भाई, बात समझ आई आप लोग को? हेलो, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, this only. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर आता है. लास्ट टाइम याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था. एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल स्फीयर है, एक बॉडी यहाँ पर रखा जाता है, स्पीड u से फेंका जाता है, एट वन पॉइंट इट विल लूज द सर्कल. यस और नो? हेलो, याद है किसी को? दिस थीटा, क्या बाबा फॉर्मूला याद है किसी को? यस और नो बाबा? हेलो, मैंने पूरा प्रूफ करके दिया था ना आप लोग को. Cos theta is u square by 3gr plus 2 by 3. हाँ भाई, याद तो होना चाहिए, वरना एवरी टाइम यू विल नॉट प्रूव इट. cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 3gr प्लस 2 by 3. ये इंपॉर्टेंट है. अब अगर आपको ये आता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो आपको u का वैल्यू देखो दिया हुआ है 0.5 gr. आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर, 0.5 gr. 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 gr बाई 3gr प्लस 2 by 3. तो 0.25 1/4 3 1/4 into 3 plus 2 by 3. हेलो, 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 plus 2. यस और नो? कितना हो गया? थीटा क्या हो गया? हेलो भाई, यस और नो? Yes, sir. ये बेसिक है, प्रूफ हमने लास्ट टाइम सिखा दिया है आप लोग को. दैट विल बी द केस. द प्रूफ इज डन. नाउ एनी टाइप ऑफ सम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट you all can do it.
क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. A sphere at A is given downward velocity v naught of magnitude 5 meter per second and swings in a vertical plane at the end of the rope, length 2 meter, attached from the support O. Determine the angle theta at which the rope will break, knowing that it can withstand a maximum tension which it can bear is twice of that of weight. So maximum tension which it can bear is 2 mg. Given है. ठीक है भाई. हेलो. ये डायग्राम यही है क्या? डायग्राम दूसरा कुछ है? हेलो. Diagram is not this, right? Diagram is this. I'll just this diagram is not there. Diagram is not there. There's another diagram. EV not है. This is the length. This is O. Hello. Do you agree? बाबा ठीक है ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. The sphere at A is given a downward velocity v naught. So there is A of magnitude 5 meter per second. इसका value 5 meter per second है. And swings in a vertical plane at the end of the rope of length 2 meters. So length is given as 2 meter. Attached to end support at O. ठीक है. Determine the angle theta at which the rope breaks. इधर rope आगे टूट गया. It can withstand a maximum tension equal to its own weight. Twice of the weight of the sphere. ठीक है. अब ध्यान दो. कहना इसे जब वो इधर आया तो उसका स्पीड v हो गया. भाई बोलो. तो बता सकते हैं कौन सा एनर्जी कौन से एनर्जी में बदल रहा है? Potential to kinetic. पोटेंशियल टू काइनेटिक. ओके. तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इसको पॉइंट को बी पकड़ता है. कहना इसे टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. सही है क्या? हेलो. या तो बेहतर है इससे अच्छा कैन आई अप्लाई दैट फॉर्मूला. आपको पता ही है ना इसमें काइनेमेटिक इक्वेशंस अप्लाई कर ही सकते हैं. तो कहना इसे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh where h will be this height. हेलो. याद है ना आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. Because since you are applying omega 2 square is omega 1 square plus 2 alpha theta, you will get the same result. The term 2gh. अच्छा h का वैल्यू कितना रहेगा? अगर ये ट्राइंगल हम लोग देखते हैं और ये ट्राइंगल अगर मैं देखूं ऐसे कुछ है. ये हाइट ये थीटा है. तो ये तो लेंथ है. तो ये कितना रहेगा? L sin theta. L sin theta है ना. तो h is L sin theta. p naught square is 5 का स्क्वायर प्लस 2g L is 2 sin theta. ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 40 sin theta. ठीक है ना? ओके. नाउ
ये चीज तो पहला वाला, दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उसी से मैंने सॉल्व किया। अच्छा, कैन आई से एट दिस इंस्टेंट, जो पॉइंट बी पर आ गया, एट बी टेंशन तो अंदर है, बराबर है क्या? टेंशन अंदर है, ध्यान दो। कैन आई से यहाँ पर अगर मैं बोलूँ दिस इज, यहाँ पर थोड़ा साइड में डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, दिस इज देयर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये टेंशन है, दिस इज mg, हेलो, ये थीटा, ये थीटा तो यही लाइन, यही लाइन पर ये कितना एंगल रहेगा? हेलो बोलो। 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? Sine. mg cos 90 माइनस थीटा, दैट इज mg sin थीटा। एंड कैन आई से ये बॉब का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, m ओमेगा स्क्वायर r, कैन आई से t अंदर, यस और नो? हेलो, t is balancing mg sin theta plus centrifugal force is m omega square r is l ना। हेलो यार, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बट टेंशन आपको क्वेश्चन में दिया है 2 mg, तो टेंशन इज गिवन एज 2 mg which will become mg sin theta m omega square l, so 2 mg minus mg sin theta m omega square l, m उड़ा दो, यहां से आपको मिलेगा 2g minus g sin theta is omega square l। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, बराबर है क्या? हेलो, हेलो, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये भी ठीक है। एक काम करें हम लोग, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ बेटा, rather देन, बिकॉज यहाँ पर v मालूम है ना, तो बेहतर है rather देन राइटिंग m ओमेगा स्क्वायर l, कैन आई राइट mv स्क्वायर बाय r? चलेगा क्या ये? हेलो, अरे v मालूम है ना यार पीछे से। हेलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना, उसको लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर में एल, बराबर क्या? हेलो, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. अब एक काम करो, वी स्क्वायर को उठा के इसमें पुट कर लो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा 2g माइनस जी साइन थीटा, वी स्क्वायर की जगह 25 प्लस 40 साइन थीटा बाय एल। भाई बराबर है क्या? एंड एल इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2 मीटर ना, तो एल का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। So this is going to become 4g minus 2g sin theta. It's equal to 25 plus 40 sin theta. 4g 40 होता है, 40 minus 25. Hello, I all there is 15 is equal to 2g, that is 20 sin theta plus 40 sin theta. It will become 50 by 60 sin theta. अरे भाई ठीक है ना? So theta will become what? Sin inverse of 1/4. Hello,
हेलो 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 हेलो, Yes, sir. हाँ ना बोलो, करेक्ट है ना? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहली चीज हमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया, दूसरे केस में हमने यहाँ पे बैलेंसिंग किया, एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। हेलो, ठीक है भाई, फाइन। आई एम डिस्कसिंग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देना। A toy car is moving on a circular path of radius 10 meter on an inclined plane of inclination 30 degree. The coefficient of friction between the tires and the inclined plane is mu is 2 by root 3. Okay. Find the maximum constant speed of the car so that car doesn't slip, assuming that the width of the car is negligible with respect to the radius of the circular path. ठीक है? अच्छा, हमको मालूम है इंक्लाइन प्लेन पे है, जब भी बात होगी इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, जब भी एक बॉडी रखी हुई रहती है ना यहाँ पर, you know the whole stuff, okay? Who is taking him down? Hey, who takes him down, man? mg sin theta. फ्रिक्शन तो अंदर की तरफ रहेगा ना। बराबर क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, मतलब फ्रिक्शन विल आल्सो बी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज म्यू एस mg cos थीटा, याद है n का, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज़ fs मैक्सिमम है। एंड कैन आई से, अगर ये गोल गोल घूम रहा है, हेलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा मैन? हेलो भाई बोलो। Yes, sir. Can I say friction अंदर, that is mu s mg cos theta अंदर is balancing mg sin theta बाहर, बस m ओमेगा स्क्वायर। हाँ भाई, अच्छा v चाहिए फिर से कांस्टेंट स्पीड मतलब v मांगता है, तो क्या करूंगा मैं? हेलो, यस और नो? Yes, sir. नो, v चाहिए ना बेटा, this is okay, that is no problem। थीटा कितना डिग्री है? 30, तो I'll just put it 2 by root 3, cos 30 is root 3 by 2, r कितना है? 10 मीटर, तो this and this and this and this will cancel, ये हो गया 10 या 5 plus v square by 10, ये 5 is v square by 10, v will become root 50 मीटर पर सेकेंड। हेलो, हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? हेलो, Yes, sir. दिस इज हाउ यू डू ऑल द सम्स बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, एकदम इजी चैप्टर है। सो एट लास्ट वी हैव फिनिश्ड बुक नंबर 1। नेक्स्ट मंडे से, that is Friday, I'll see what we can do. If you all have doubts, then you all can message me, so we'll take the doubt solving of circular motion, and अगर नहीं है doubt तो ठीक है, and then Monday से we can start with book number 2। Getting it ना? ठीक है ना? चलो, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय Thank Bye, you, sir. sir. Thank Bye, sir. बाय बाय।